Hello everyone, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparations. Today our topic is Zohari window. All about Zohari window we will discuss. So how to improve our skill, our personality, our self-awareness. So within ourselves and within group, how we will improve everything. So everything on detail we will study about Zohari window. In this Zohari window, we will clarify everything. So let's start the topic. So yes, today our topic is what? Zohari window. Zohari window. This is the model. So पूरे डिटेल में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जोहारी विंडो क्या है, कैसे इसका नाम बनाया गया, ये है इंट्रोडक्शन. सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल टूल created by Joseph Luft and Harry Hingham in 1955. These two persons togetherly formed the name Zohari window. Zohari window. So they are, ये दोनों क्या थे? इन लोग दोनों साइकोलॉजिस्ट थे. They are the psychologist. (1955). So according to their name, this name has been the combination of their name, the combinations of their name has been created. So how it is? Joseph and Harry. So Jo and Ha. So Johari. So Jo and Hari. Johari. So they created this name by combination of their name. So this is what Zohari, and why it is important, why they created this Zohari window model. This is very, very important for what? Personal communications, interpersonal, for interpersonal communications as well as personal communications. So in detail what happened? Ki they are the two psychologists. Name is what? Joseph Luft and Harry Hingham. 1955 they created one model that is called Zohari window model. So the name has been created. वो नाम कैसे पड़ा? उन लोग के नाम से. उन लोग का नाम क्या था? जोसेफ से जो और हैरी से जोहारी. So like that this name has been formed in 1955. तो इन्होंने इस विंडो को क्यों बनाया? To self awareness. The first thing is that this is a tool for what? Self awareness, help and understand and improve understand and improve interpersonal relationship between within yourself and within a group. So this is a important tools to understand yourself. अपने आप को समझना as well as लोगों के बीच में अगर आप है तभी दूसरों को भी समझना, ग्रुप में समझना, तो लोगों के साथ कैसे means how you can
participate with anything that people they are participating with. So this is a tools from where we can understand ourselves, we can understand people, the self awareness. If something we are lacking, that we can aware of that, means the lackness will be fulfilled. So ये होता है जोहारी विंडो का इंट्रोडक्शन. सो इसमें इंपॉर्टेंस क्या क्या है? हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट वन सेल्फ. अपने आप को समझने के लिए क्या करता है? दिस इज वेरी हेल्पफुल. अपने आप को, बहुत सारे लोग अपने आप को समझ नहीं पाते. अगर कुछ करना है, अगर हम स्पेशली यहाँ पे मैं बात करूंगी पेशेंट के बारे में, अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो हम पेशेंट को कैसे समझेंगे? हमारे खुद के में ही बहुत सारा एंगर हो, पैनिक का बिहेवियर हमारे अंदर हो, और हम जाके पेशेंट से बात कर रहे हैं और पेशेंट को वैसा बिहेवियर हम दिखा रहे हैं, तो हमको लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रही हूँ पेशेंट के साथ. वो पेशेंट ही वैसा है. बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ. हमको सबसे पहले अपने आप को समझना है. हेल्प अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट वन सेल्फ. अपने आप को समझना, किसी को समझना. सो दिस इज व्हाट हेल्प टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड अदर. सेकेंड इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट. यस, पर्सनालिटी इज very important to communicate with other, because if you are poor personality, if you are poor personality, अगर आपका personality इतना अच्छा नहीं है, sometimes what happen, personality में lack due to so many things, due to confidence level, decreased confidence level, low confidence level, yeah, sometimes speaking issues, can't speak properly, speech issue, language issue. So because of so many things are there, that our personality में lacking for some reason, that we can't able to talk with people or can't able to face any type of communications or any type of group discussion. So through these tools, through this Johari window, we can develop our personality. That when we understand ourselves that these all things is lacking within me, later on we'll study about the 4 quadrants. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्यों जोहारी विंडो इज इम्पॉर्टेंट. सो पर्सनालिटी डेवलप के लिए इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल. यस, अगर हम इस जोहारी विंडो को अच्छे से समझेंगे तो इसमें जो 4 क्वाड्रेंट्स है उसी में ही हमको सारी चीज़ मिल जाएंगी कि हम अपना कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाएं. तो आगे देखेंगे हम. डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. यस, इट विल हेल्प us to develop interpersonal relationship. Means not within us, we can talk to other people also without having any hesitation, without having any type of tension, yeah, irritation, lack of confidence will be not there. So these all things we will study here. In next we will study about this, about the 4 quadrant, what are the 4 quadrants and through what our personality, all these things can be improved. Develop intergroup relationship. Yes, so मैंने बोला within a group how we can develop to speak people, some we will discuss later. Then build trust. Yes, by your nature you can build a trust. Then foster clear understanding. Yes, understanding कैसे clear कर सकते हो faster, कि if you are saying something and other, how can they understand you soon? By your communication, if your communication skill is good, if your personality is good, then other people can understand you betterly. Then improve teamwork. Because of that we can improve our teamwork. If we are doing any teamwork, like we are health worker, have so many teamwork, so they may
they may practice for they may practice for alcoholism, how to keep people, how to give advice about the harmness of alcoholism, how to aware the people that alcoholism is really too much bad effect to how it affect to your body, and how you can stay away from this. So these all are what teamwork. So in teamwork, if you will not talk to each other, अगर हम दूसरे से बात नहीं करेंगे, अगर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हमारा टीम वर्क कैसे सक्सेस होगा. So let's see one by one. First we will see the 4 quadrants. What are the 4 quadrants? This is very much important. 4 quadrants means what? Things which I know. There are 4 quadrants. This is called public arena. First one, things which I know. Okay, things other also know. This is what public arena means. This is a public place. Public place. First one is what? Public place, where both know each other. Both know each other. Means both know yourself. You also know you know yourself, as well as the people know yourself, others know yourself. This is what? This is the public arena or public self. Things others know about you, things I know about you, and things others know about you, means this is what? These things means, example, if you will see that social media platform, example, if you will see example like social media platform where means what you are showing yourself, people know that, means how you are knowing yourself, means as an actor. Example, you are an actor and everybody knows that you are an actor. So this is what? This is a public place. This is the area where public arena, which called public arena, public self, means आप अपने आप को जान रहे हैं और दूसरे भी जान रहे हैं. एग्जाम्पल में मैंने बताया कि जैसे कोई एक्टर है, जो जैसे कोई सिंगर हो, जो भी है, बड़े लोग, मतलब जो एक्टर है, जो आर्टिस्ट है, जो डांसर है, सिंगर है, तो उनको पब्लिक जानता है. और हमारे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होती है, जो जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो उसमें हम जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग हमें वैसे जानते हैं. सो वो एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है. मीन्स हाउ पीपल नो यू, how you knows yourself and people also know. The things which both know means सब जानते हैं आपके बारे में. That is what? Public area. And second is what? That is blind area. Blind area means what? Unknown to self, means things you don't know, but other know about you. Means what happened? Example, blind area. This is second, this is the 4th quadrant of Johari window, and this is the second, blind spot. Means what? Means what? Things which you don't know. Things which you don't know but other know. Means आप अपने बारे में नहीं जानते बट दूसरे लोग जानते हैं. ऐसा क्या हो सकता है कि आप अपने बारे में नहीं जानते, दूसरे जान सकते हैं? जैसे कि हमारा कुछ चीज हो जाता है. जैसे नेगेटिवली अगर हम बोलेंगे कि बिहेवियर, मैनरिज्म, और ये हो गया. मीन्स ये नेगेटिवली अगर हम देखेंगे कि
how you are behaving with other. वो आपको कोई नहीं बताता. People, they won't say you about your behavior, your mannerism, or goodness also they never tell you. So here what happen कि अगर नेगेटिवली हम सोचेंगे कि हम कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, स्पेशली विथ पेशेंट, हम पेशेंट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो हमको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, बट आपके बिहेवियर से कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को बहुत चोट लगती है, दुख लगती है, आप उन्हें बहुत इरेलेवेंट बिहेव करते हैं, बहुत एरोगेंटली बात करते हैं. सो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि, और वो सिर्फ पेशेंट के साथ नहीं, अगर इफ़ एनीवेयर यू आर वर्किंग, अवर वर्किंग प्लेस हो गया जहाँ पे आप कैसे लोगों से मिंगल होते हैं, क्या करते हैं, वो सिर्फ लोग जानते हैं. आप मूडी है, यू डोंट वांट टू टॉक विद इन अ ग्रुप, आप लोग ग्रुप में बात नहीं करना चाहते, तो ये सब चीज़ें क्या है वो आपको नहीं पता, पर दूसरों को पता है. बट दूसरे इसके बारे में जानते हैं अच्छे से, बट दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज until and unless you ask them that how I am and how is my behavior, how is my gesture and posture in hospital या in working place, then only they can tell you. ऐसे ही नहीं बोल देंगे कोई किसी को. अगर आप, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, you don't know about don't know about yourself, means आप नहीं जानते कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे आपका बिहेवियर है, आपका मैनरिज्म कैसा है, तो ये अदर जानते होंगे. और कभी कभी पॉजिटिवली क्या होता है, जैसे कि आप एक सिंगर हैं, जैसे कि आप एक सिंगर हैं, आप सिंगिंग करते हैं, और बट यू डोंट नो दैट यू आर ए गुड सिंगर, योर वॉइस इज सो प्रिटी, योर वॉइस इज रियली नाइस. ये सारी चीज़ें क्या लोगों को पता रहता है, और बट दे विल नॉट टेल यू. कभी कभी ऐसे होता है कि आपका पॉजिटिव चीज़ लोगों को पता रहता है, बट वो नहीं बोलेंगे. ये एक पॉजिटिवली मैं बात कर रही हूँ. तो ये आप इसको क्या है, आप बहुत लाइटली लिए हैं, आप जानते ही नहीं हैं कि आप गुनगुनाते हैं, कभी बाथरूम में, कभी कुछ जैसे सॉन्ग कंपटीशन वगैरह होता है, दम शराज जब खेलते हैं तो आप गाते हैं, बट कोई आपको तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि अगर तारीफ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए. तो ये एक पॉजिटिवली भी आता है. तो ये ब्लाइंड सेल्फ है. कभी कभी हम अपनी नेगेटिव चीज़ों को भी नहीं जानते, कभी कभी हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को भी नहीं जानते. तो अगर हम इसमें काम करेंगे, मैं बताऊंगी इसको. सो दिस इज व्हाट नोन टू you, things you know, things you don't know but others know about your positiveness and negativeness. So this is what the second quadrant. And third we will see, that is hidden self. Means what? Hidden, something which you know better but other don't know about that. That is hidden to other. Means what? Like हम कह सकते हैं कि हिडन टैलेंट, दिस इज पॉजिटिवली. नेगेटिवली होगा जैसे कि नेगेटिवली अगर देखा जाए तो शायनेस और स्टेज फियर, पब्लिक फियर, पब्लिक अनकंफर्टेबल, पब्लिक अनडिजीनेस. So these are the things which is hidden, only you know. आप जानते हैं कि आप मतलब क्या होते हैं. आप डर है, आपको स्टेज फियर है, पब्लिक फियर है, आप लोगों के बीच में बात नहीं कर सकते, लोगों के साथ आप रहें तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं. सो दीज आर व्हाट, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स. और गुडनेस इज व्हाट, हिडन टैलेंट, आपके में बहुत अच्छा टैलेंट है, बट you only know that you are your talent, that you are a best dancer या artist या speaker, that you know well. Even though you want to bring that one to the world,
बट बिकॉज ऑफ योर हेजिटेशंस, आपके हेजिटेशन की वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ योर व्हाट टू से डर, और डर की वजह से क्या है, आपका जो नेगेटिविटी है, मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, लैक ऑफ confident, lack of confidence, hesitation, and agitation, fear. So because of these all things, what happen, your talent, your positiveness, what you are knowing betterly than other, so that things and all not coming to the world because of your hidden self. This is hidden self, means blind and hidden. This is something link up with each other. So this is fourth one. And last what happened, unknown to everyone, unknown to everyone. ना आपको पता है, either you know or other people knows you. So this is what, this is totally unknown. So when we work in these two, means blind and hidden. Blind means what others knows but you don't know. So how you will work there, how you will work within this two quadrant, means when you ask question, when you ask about yourself, ब्लाइंड में, जैसे आप किसी को पूछेंगे, आपको लगता है कि शायद मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना है, मेरा मैनरिज्म को शायद गलत है, या कभी आपको फील हो गया, सो यू कैन आस्क टू क्लोज वन, कोई क्लोज वन है तो उसे आप पूछ सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट में क्या है, द थिंग्स विच यू डोंट नो बट अदर्स नो. अरे यार प्लीज टेल मी, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा गेस्चर कैसा है, मैं कॉल यहाँ पे आता हूँ वर्किंग फेज में मैं कैसा हूँ. नहीं तो अगर आप एक नर्स है तो आप किसको पूछेंगे, अपने ही कलीग्स को पूछेंगे कि हाउ आई एम, प्लीज टेल मी, मेरे बारे में थोड़ा बता, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है बता. सो इफ शी इज ए क्लोज वन टू यू, सो श्योरली आप उनसे कुछ गुडनेस आपको मिलेगा, मीन्स शी विल हेल्प यू. देख तेरा नेगेटिव यही है, तू ऐसे गुस्सा करती है, या तू लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, कोई तेरे को विश करते हैं तो तू उन्हें रिप्लाई नहीं देती. सो दीज ऑल थिंग्स व्हेन शी विल टेल टू यू, सो यू कैन चेंज योरसेल्फ. सो द ब्लाइंड स्पॉट विल बी व्हाट हैपन, दैट विल बी नॉट ब्लाइंड स्पॉट. वो अब आपके लिए ब्लाइंड नहीं होगा, वो धीरे से क्या होगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा आपके लिए. व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली द थिंग्स. ये है जोहारी विंडो, जिससे हम क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करना, अपनी क्वालिटी को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना. सो दिस इज व्हाट, व्हेन यू आस्क टू द पीपल अबाउट योरसेल्फ, योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स या योर फैमिली, सो दैट फैमिली वी स्टे हैप्पीली. घर में तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे सबके साथ, बट हाउ वी आर इन अदर विथ अदर इन आवर प्रोफेशनल फील्ड या इन आवर में हॉस्पिटल फील्ड, हाउ वी आर. सो अगर आप किसी को पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा कि नहीं आप ऐसे हैं तो वैसे हैं. तो यू कैन चेंज योर नेचर, चेंज योर हैबिट, चेंज योर पर्सनालिटी. सो this open this blind one will be what happen, this will be open field, this will not be blind. So again, so when you understand yourself. And third is what, the hidden things, means the things which you know but other don't know. So when it will bring out, कैसे आप इसको बाहर लाएंगे. आप जान रहे हैं कि मैं अच्छा डांस करता हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, मेरे में जो मेरा वॉइस जो है बहुत अच्छा है, मैं स्पीक कर सकता हूँ, मैं सिंगिंग कर सकता हूँ. बट बिकॉज ऑफ क्या, lacking of self confidence, या lacking of your self ability, these all things what happen, lacking of your self awareness, आप क्या कर रहे हैं, उसको छुपा के रखते हैं. But when you bring that, like when you bring that one to outside, you will feel satisfied,
satisfy, and the burden will be decrease. So the burden will be decreased. What happen when you speak to people, when you bring your hidden things to out, either it is positively मैंने बताया कि ये सारी चीज, नेगेटिव अगर है तो like stage fearness, these all things. So these all things also, when you understand yourself, no, I have to grow, I have to change in this, change with my quality, my hesitations, my confident, then my talent will be come out. So that will be means वो अंदर ही अंदर क्या है, आपको बहुत घुट रहा होगा, ये वो डांस कर रही है, वो गाना गा रही है, वो ऐसे कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें, ये क्या मेरे साथ भी हुआ है. कभी इसके बारे में मैं बताऊँगी, कभी इसके बारे में स्पेशली एक वीडियो बना के बताऊँगी कि मेरे लाइफ में क्या था, कि how I overcome from all these things which was inside me, which I am. I never known that who am I. People always despised me. मुझे लोगों ने बहुत मेरे साथ किया, मतलब बहुत तुच्छ माना था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ. सो ये मेरी हिडन में था, अब वो आ रहा है, अभी धीरे धीरे आ रहा है. सो दिस इज the things which is inside you but you don't want to bring it out. आप उसको लाना नहीं चाह रहे हैं, बट अगर आप उसको लाएंगे, जो भी रुकावट आ रही है, मीन्स बैरियर जो भी आ रही है, तो क्या होगा, वो ये जो स्पेस है, जो लोगों को नहीं पता, वो फुल हो जाएगा. ये जो अननोन एरिया मीन्स neither you know nor people know. So this is what this area will be filled up by when we work. When we work about this blind spot and the hidden self, things other don't know about you. When we work here, then the things will be fulfilled, the unknown area will be filled. So fill up with your things. When you know yourself, when your hidden things will be come out for to what, कि जैसे आप अपने आप को चाह रहे हैं लाने के लिए सामने में, या आपकी जो ब्लाइंडनेस था, जो आपने आपको आप जान नहीं रहे थे, जो आप जान गए हैं, और जब बाहर आएगा तो दैट विल बी गिव यू सेटिस्फेक्शन. आपका जो एरिया है जिसमें ना लोग आपको जानते थे, ना आप अपने आप को जानते थे, तो वो सारी चीज़ बाहर आ जाएगा. सो ये होता है क्या, जोहारी विंडो. मीन्स मैंने आपको बताया 4 क्वाड्रेंट. एक क्वाड्रेंट जो है, the first one is what, public area, second is one blind area, and third is what, self known, hidden self known, and unknown area for each, for yourself as well as for other. So what happened, how you can manage with this area in where your fault is there, and how you decrease your fault, and how you improve your personality, your communication skill. So by talking with other, by knowing yourself. So this is the Johari window model, in which this is very helpful for your personality development as well as interpersonal relationship built. So this is very important. Again we will see that what happened in 4 quadrant. Again, quadrants means first one is the open self, which I told you. Open self means what, means the things which you want to show to people, means which is open for the people. Example मैंने बताया इसमें है कि जैसे ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि ओपन सेल्फ क्या होता है. ओपन सेल्फ मीन्स व्हाट, कि जो द थिंग्स विच इज़ वेरी ओपन फॉर यू एज वेल एज पीपल, जो आप है पब्लिकली, आप एक जो भी आपका सोशल मीडिया में आपका फ़ोटो डाल रही है, या आप कहीं गए हैं, या आप एक आर्टिस्ट है, जो भी हो रहा है वो लोगों को पता है, वो everybody knowing about yourself as well as you know about yourself. Second is blind spot. Blind spot में क्या होता है, very shortly I am telling you. Blind spot में क्या होगा, blind spot means what, this is
the spot where you are not aware about yourself, but people, other know about you. So when you overcome from this blind spot, I told you that when you ask people that how is my contribution, how is my personality, how is my my quality, so please tell me, if your close one will be there, then they surely help you, जो वो आपको help करेंगे और आप इस blind spot से निकल जाएंगे. थर्ड इज व्हाट, आपका हिडन टैलेंट, मतलब हिडन स्पेस जो आपको पता है बट अदर डोंट नो. सो इसमें क्या है, आपको वही करना है, आपकी सारी जो नेगेटिविटी है सबको पीछे छोड़ना है और डर को भगाना है और आगे बढ़ना है. जब आप ये दोनों चीज़ में ध्यान देंगे, थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड, देन फोर्थ विल बी completely fill up by your, when you work about these two things, blind spot and hidden self, then you can fill up the unknown area where nobody knows you, that you can bring there and fill the fourth quadrant. So this is all about Zohari window. It is very important in question section. क्वेश्चन में ये बिल्कुल आता है और आप उनको अच्छे से समझे वो चारों फेज को. इसको पब्लिक एरिना भी बोलते हैं कभी कभी. ये नाम सबको आपको याद रखना है, क्या क्या बोलते हैं इसको. पब्लिक एरिना और ब्लाइंड स्पॉट, public self, things others know. This is very nicely it has been there. Things I know, things I don't know, things other know, things other don't know. So ये बहुत अच्छे से है. other know about yourself and you know about yourself and other. So things other don't know, वो है ये और ये. So ये जो है बहुत अच्छा क्वाड्रेंट, बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन बना हुआ है ये जो मॉडल है. सो आप इसको याद रखें. हमने देखा बहुत सारे बेनिफिट्स है कि ग्रुप के अंदर हम किसी से, हम अपने आप को, अपना पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, ग्रुप के अंदर हम अपने आप को कैसे मिंगल करें. तो ये सारी चीज़ हमने देखा. 4 क्वाड्रेंट्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम व्यू पॉइंट्स. तो आप उसको अच्छे से समझे. उसमें बेनिफिट्स तो हमने देखा कि बहुत सारे बेनिफिट है. इजी टू ग्रास्प, फ्लेक्सिबल आउटकम, catalyze open sharing of information. This method will create a shared reference point. Yes, ये सारी चीज़ें हैं कि क्योंकि easily grasp करना, कोई भी चीज़ को हम अगर समझने की कोशिश करते वो समझ जाए. और फ्लेक्सिबल आउटकम, जैसे हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप किए, लोगों से बात कर रहे हैं अच्छे से, तो जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है. और हमारा जो हम पेशेंट हो, स्पेशली हम यहाँ पे क्या पेशेंट से बात कर रहे हैं, पेशेंट के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो पा रहा है और पेशेंट की जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें क्या होगा, जोहारी विंडो के थ्रू अगर हम अपने आप को बेटर समझेंगे, हमारी हिडन क्वालिटी हो गया, हमारा ब्लाइंड स्पेस हो गया, अगर वो आपको फुलफिल हो जाएगा तो वो क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. वो जो अननोन स्पेस है, where either the person or the public both don't know about the space, so that you can fulfill the space by knowing about yourself, about the 2 quadrant, 2, second and third. So इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो अच्छा ही है. मतलब जो हरी विंडो के थ्रू हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर दिए, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं, हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं, विद इन ए ग्रुप हम अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ उसका बेनिफिशियल है. ड्रॉबैक की इसमें थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव ड्रॉबैक भी है, बिकॉज अगर सम थिंग्स आर बेटर नॉट कम्युनिकेटेड, कुछ चीज़ें ऐसे रहता है कि हम लोगों से ना ही बोले, इच्छा नहीं है बोलने के लिए, बट जैसे कि हमको कुछ बीमारी है, जैसे पर फैमिली में इश्यूज है, लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, वी डोंट वांट टू डिस्कस, बट देन आल्सो if some group, we involve with some group, yeah, your neighbors, they wants to talk to you, what happened, tell us like that. So इसमें क्या होता है कि नहीं, ये तो मेरे अंदर है, this is hidden for me, ठीक है, इसको मैं डिस्क्लोज कर दूंगी तो मुझे हल्का लगेगा. बट कभी कभी क्या होता है, वो आपके मजाक बनाएंगे, वो डिस्क्लोज तो आप कर लेंगे, बट दैट विल बी ए नेगेटिव intent, and they will make some negative intent for you.
सो नेगेटिव काउंसिल भी कर सकते हैं। सो ये क्या होगा, ये एक ड्रॉबैक हो सकती है। और सम पीपल में पास ऑन इन्फॉर्मेशन फर्दर, तो वो आप किसी को बोलोगे, आपको लगेगा कि चलो मेरा बर्डन कम हो रहा है, तो वो दूसरे को बोलेंगे, दूसरे को तीसरे को जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा कि आपका जो पर्सनल स्पेस जो था ना, पर्सनल थिंग्स हैज बीन व्हाट डिस्क्लोज अमंग मेनी पीपल एंड दैट विल बी अ टेंशन फॉर यू। वो आपके लिए एक टेंशन भी हो सकता है। कभी कभी सोच समझ के आपको करना है। हिडन थिंग्स मीन्स व्हाट मीन्स, जैसे मैंने बताया कि आपका टैलेंट हो गया, आपका स्टेज फियर हो गया, पब्लिक फियर हो गया, ये सब का आप कर सकते हैं, बट ये सब को आप क्या है दूर कर सकते हो। बट एकदम पर्सनल थिंग्स किसी से शेयर करना इज नॉट गुड, दैट विल बी अफेक्ट नेगेटिवली इन योर लाइफ। Some cultures don't have a very open and accepting approach to the feedback. कुछ कल्चरल इश्यूज भी रहते हैं, ताकि उन लोग क्या है कि उस चीज़ को नहीं मानते हैं। जैसे कल्चरल इश्यूज में क्या है, एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी, कल्चरली हम इंडिया में हम नॉर्मल किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते बोलते हैं, नमस्ते हो गया, पैर छूते हैं। बट बाहर के लोग ज़्यादातर क्या है, दे आर हगिंग, दे आर किसिंग, दैट इज़ फॉर्मल फॉर देम। सो ये सारी चीज़ें क्या है, कभी कभी हमारे जो पर्सनालिटी में क्या होता है, हमारी जो पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कुछ ग्रुप में हैं एंड योर पर्सनालिटी इज़ डिफरेंट, बट सब लोग ऐसे कर रहे हैं, तो आप यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ दिस टाइप ऑफ कल्चरल थिंग्स, बट आपको करना पड़ रहा है, तो वो भी एक क्या होगा कि नेगेटिव, दिस इज अ ड्रॉबैक फॉर व्हाट जोहारी विंडो। सो ये क्या है, नेगेटिव में आ सकते हैं। कभी कभी ड्रॉबैक्स आता है 1-2 मार्क्स का, तो आप इसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये था हमारा जोहारी विंडो। जोहारी विंडो पूरा द इंट्रोडक्शन ऑफ जोहारी विंडो हमने देखा और पढ़ा, और उसका इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा। द इंट्रोडक्शन में क्या था कि वो क्यों था, कौन किसने बनाया, कि दो साइकोलॉजिस्ट ने बनाया, और उस कब बनाया, क्यों बनाया, हर चीज़ हमने देखा। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, why it has been built, the tool is why it is important, हमने importance देखा। help to understand personality development, improvement, communication, develop interpersonal relationship, see these all things we studied. Then directly we went to the quadrant, उसका जो 4 क्वाड्रेंट है, क्या क्या है उसका जो 4 क्वाड्रेंट था जोहारी विंडो का, 4 क्वाड्रेंट के बारे में हमने पढ़ा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी स्टडीड अबाउट लास्टली द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक। सो थैंक यू सो मच। इफ यू गेट एनी बेनिफिशियल फ्रॉम दिस वीडियो, अगर थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल हो सका, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। हिंदी में भी है इसका, ये हिंदी में मैंने बनाया, इसका इंग्लिश वाला वर्जन है, इसको ज़रूर आप देखें। हिंदी इंग्लिश हमेशा दोनों को मिला के आप पढ़ें, तो आपके बेनिफिशियल के लिए, आपके एग्ज़ाम व्यू पॉइंट, आप राइटिंग में आपको बहुत बेनिफिशियल देगा ये। सो थैंक यू सो मच।